So in last class, we were doing this all. So I think till properties of matter is over now. Hello, Yes, sir. till properties of this is over now. I'll share this screen. Till this topic it is over now. Fine. Yes, sir. Okay, fine. So I was waiting for some more students. So, which time will be suitable for you? 9 to 10 will be good for you, or okay, or 6 to 7? Sir, I guess 9 to 10. 9 to 10 will be okay. So, from tomorrow onwards, we will be having class from 9 to 10 instead of 6 to 7 or 7 to 8. Some other students, droppers, are having their physics class from 7 to 8. So, they requested me to change time. Akhtar sir Yes, also sir. requested me to change time. So, that's why from 9 to 10 will be okay. Okay. Yes, So, sir. till here we have already done properties of matter. We have a very fast relook of this classification of matter into physical and chemical classification. This solid liquid gas is physical classification. This solid liquid gas is physical classification. And you know, fourth state also, there in ninth class we studied. Now in 12th again we will be having a separate chapter on that. What it is, that is colloidal state, that is plasma. Colloidal state, that is plasma state. You know, plasma, colloidal, albumin now, which state it is? It is albumin now, which state it is? It is colloidal state or plasma state. Gum now, what gum is? Solid, liquid or gas? It is plasma or colloidal state. So that's a very special state of any substance. There will be a separate chapter there in class 12th on that colloidal state. Then you classified the matter into chemical classification also was there, and you classified that into two parts, mixture and substances. You can convert mixture into pure substance by physical or mechanical methods. And you know, mixtures can be of two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous means one phase and heterogeneous means two phase. Then you can classify pure substances into, you can classify pure substance, we can classify pure substance into two classes. One is element and second is compound. One is element and second is compound. Second is compound. Simplest state means in which only one kind of elements are there, and complex state means where more than one type of elements are there, that will be forming compounds. So compounds can be inorganic and organic, and the simplest states of any element, that is purest state of any element, that is made of only one kind of atoms, that is made of one kind of elements. Now see, And properties of matter. Properties of matter. Uh, Two types of properties are there: chemical properties and physical properties. Chemical properties means due to change in due to change in composition, there will be change in chemical properties. And other than composition, color, density, melting point, boiling point, hardness, refractive index, this all is refractive index, thermal conductivity, electrical conductivity, malleability, ductility. This all is physical properties. These all are examples of physical properties. As I told you, 1H1 is the lightest element, and U92-238 will be the heaviest naturally occurring element. Total, there are 117 elements, out of which 88 are naturally occurring elements, and remaining elements are artificial elements, means do not found in earth crust. We have to synthesize them in lab. After yes, sir. U92, uranium 92 in periodic table, all such elements are called transuranic elements, and those elements which are placed after bismuth 83 in periodic table are called radioactive elements. Are called radioactive elements. Fine, are called radioactive Yes, sir. elements. So first artificial element was TC43. Technetium 43 was first artificial element, means was synthesized in lab. Technetium 43 was the first element which was synthesized in lab, which was synthesized in lab. Labs. Fine.
Yes. Tc43. Then total out of 117, 99.2% part of the earth crust is covered by these 10 naturally occurring elements. Total Yes. 99.2% part of entire this earth crust was occupied by these 10 naturally occurring elements. What I told you, that oxygen is 49.5%, silicon is 25.7%, aluminium is 7.5, iron is 4.7, calcium is 3.4, sodium is 2.6, potassium is 2.4%, magnesium is 1.9%, hydrogen is 0.87%, and titanium is 0.58%. Total altogether, these elements constitute 99.2% part of the earth crust. These 10 naturally occurring elements. These 10 naturally. Remaining 0.8% will be occupied by around 107 elements. Fine. So they can ask you which Yes, is sir. the most abundant metal, first most abundant, second most abundant, third most abundant. Fine. How else they can ask you which S metal is most abundant? This is calcium, na S block metal is most abundant. Fine. Now, how else they can ask you which first A group metal or the alkali metal will be most abundant there in the earth crust? It is sodium. Sodium is the most abundant first A group metal, alkali metal. Calcium is the most abundant second A group metal or alkaline earth metal, or you can say most abundant S block metal. Most abundant D block metal is Fe. Most abundant P block metal is aluminium, or you can say most abundant metal is aluminium. So like this, they can ask you so many questions. Fine. So copper, zinc, tin, and lead, these are most abundant, but their deposits are rich. So it will be easy for you to extract these metals from them. But what about titanium and zirconium? These are also abundant. Total as a whole, their percentage is very high. But average distribution of these gases means deposits are not rich. So extraction is difficult and expensive. It is not experience, it is expensive. Right, their extraction will be quite expensive. That's why to obtain this titanium and zirconium from the earth crust, that's a little difficult. Total 22 elements are non-metals. 80% are metals, and remaining Yes, sir. 22 non-elements are non-metals, out of which 11 are gases, 10 are solids, and the only one liquid is liquid non-metal, that Wrong. is bromine. You know, liquid metal is mercury, and liquid non-metal, Yes, only sir. liquid non-metal is bromine. So this can Wrong. also be an important one. So now in compound, constituents have their fixed properties. They do not regain their properties, and physically inseparable. And physically inseparable. Inseparable. Fine. It won't be possible for us to separate them. Now, properties of substances, we did this also. Properties of substances. Properties of substances: deliquescent or hygroscopic means having tendency of absorbing moisture from the environment. Yes, sir. So deliquescent means taking up taking up the moisture present in atmosphere and becomes wet. For example, NaOH, KOH, anhydrous CaCl2, MgCl2, FeCl3. This property, salt is also having salt is also hygroscopic Yes. or deliquescent in nature. So Yes, sir. why this salt was deliquescent or hygroscopic in nature? Because due to the presence of MgCl2 in NaCl. In common salt, in table salt, in rock salt, MgCl2 is also there in that NaCl. And that MgCl2, see here, nowhere NaCl is written. Nowhere NaCl is written. Nowhere NaCl is written means NaCl Yes. is not having this deliquescent property. Because of the presence of MgCl2 there in them, will be because of this only they will be hygroscopic in nature or deliquescent in nature. Are you getting my point? They can ask you this Yes. question too. So because of MgCl2 in common salt, that common salt is deliquescent in nature or hygroscopic in nature, will be having tendency of absorbing moisture. So nowadays, your salt is free flow salt. Nowadays, your Sorry. salt is free flow salt. Free If flow salt. moisture, yeah, if moisture is there in that salt, if
water is there in that salt, then that salt won't be freely flowing now. But nowadays your salt is free flow salt, even if it is moisture, even if it is rainy season, then also. Why? Because in that salt they have reduced the percentage of proportion of MgCl2 there in that NaCl. That's why it will be free flow salt. Sir, can you repeat this? Nowadays, even if it is rainy season, then also your salt is free flowing now. Yes, sir. Why it is free flow? Because in that, nowadays in this salt, modern salt, MgCl2 is not there. That MgCl2 in NaCl is responsible for absorbing moisture. And if it is not there, then obviously it won't be absorbing moisture. And if it won't Yes, be sir. absorbing moisture, then NaCl will be free flowing only, na? Yes, sir. So that's the reason. All these are questions. Don't take all these things casually, because all these points can be there in the form of question. So you should be Yes, sir. cautious little there in this. I call that ma'am because otherwise I need to repeat it again. Yes, sir. So deliquescent and hygroscopic both are same, one and the same thing. And deliquescence examples, compounds are given there: NaOH, KOH, anhydrous, CaCl2, MgCl2, FeCl3, etc. Hello, हाँ Izan, you are not there in classroom. नहीं लिंक तो भेजा है ना मैंने, लिंक भेजा हुआ है मैंने, जस्ट चेक इट. फाइन, जस्ट प्लीज चेक इट. फाइन. So what about hygroscopic? CuSO4, CaO, Na2CO3, all these are hygroscopic in nature. Their water will be there in the form of water of crystallization, or water of hydration, or that is hydrates Yes, or hydroxides. So this was about deliquescent and hygroscopic. What next is efflorescent. Efflorescent is loss of efflorescent. Is there a difference between deliquescent and hygroscopic? In deliquescent, in hygroscopic, and in deliquescence, hygroscopic will combine with moisture of atmosphere and convert it into hydroxide or hydrates. For example, CuSO4.5H2O. This will be hygroscopic, and here you won't be showing that water of crystallization. In this case, you won't be writing the water of crystallization. That's the difference between hygroscopic and deliquescent. Okay. Fine. This Yes, will sir. be just water, moisture will be there on the molecules of these compounds, but here it will be combining. It won't be combining chemically, but it still will be combining with that compound CuSO4.5H2. So this Yes. taking up the moisture present in atmosphere and becomes wet. This will become wet, and this won't become wet. This will become hydroxide or hydrate. That's the difference. Fine. Yes. Yes, sir. Efflorescent, both are one and the same thing. Efflorescent means just opposite of deliquescent. Just opposite of deliquescent is called efflorescent. That is having tendency of losing water. Having tendency of losing water. Water. Fine. So Yes, that water is there in the form of crystallization. On exposure, it becomes powdery on the surface. For example, FeSO4.7H2O, this will be losing water. This is green vitriol. This is washing soda, Na2CO3.10H2O, and this is Glauber's salt, GLAUBER', Glauber's salt. That's Na2SO4.10H2O. Already notes are there with you. This is potash alum. This is potash alum. That's Fitkari. I told you potash alum Fitkari. This Fitkari or alum is used to purify water. Water. Yeah, that Dettol, na? Yes, sir. In Dettol, what it is there? This alum is there. Water plus alum, that will become antiseptic, will kill germs, will be having germicidal action, will kill germs. Fine. So Yes, that alum means Fitkari. In Hindi, Indian name is Fitkari. So what ऐसा भी होता है कि वो जो इंडियन नेम्स है ना, वो इंग्लिश में लिख के दे देते हैं. एंट्रेंस में क्या करते हैं, इंडियन नेम्स जो है ना,
वो इंग्लिश में लिख के दे देते हैं, तो दैट इज एलम। तो हमको ये Alum. चीज से भी थोड़ा सी केयरफुल रहना चाहिए। Yes. ठीक है, तो ये एफ्लोरेसेंट हो गया। देन इसके बाद मैंने आपको मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी बताया था। Yes, sir. इसके बाद मैंने आपको मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी भी बताया था। मैलिबिलिटी एंड डक्टिबिलिटी भी बताया था आपको। तो मैलिबिलिटी क्या है कि हम उसको मेटल को पीट पीट के हैमरिंग करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो Yes. जो जो गोल्ड होता है ना, वो बेस्ट मैलिएबल मेटल होता है। गोल्ड बेस्ट Yes, sir. मैलिएबल मेटल होता है, लेकिन चांदी भी मैलिएबल होता है। तो हमने देखा होगा चांदी के वर्क, सोने का वर्क जो होता है ना, उसी तरह से लेदर के बैग में छोटा सा पार्टिकल रख करके उसको इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दैट मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। So in case of malleability, metals are beaten into a thin sheet, and this property will be shown by copper, Ag, Au, aluminium, and lead, etc. And the best malleable metal is gold. In ductility, what happens? That metal will be drawn into thin sheet, wire. For example, copper, Ag, Au, aluminium, Fe, all these metals will be drawn into thin wires. So platinum is the most ductile metal. Platinum, that is white gold. Now, in last class, I told you about this too. Yes, sir. White gold. White gold is the most ductile metal. That's the least reactive metal. That's the best noble metal. Gold, silver, platinum, all the three are noble metals, but amongst all these three, platinum is the Platinum is the most most accepted. noble metal, most ductile metal, least reactive metal. प्लैटिनम की कीमत इतनी क्यों है भाई ज्यादा? क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है। Yes, यानी sir. गोल्ड में भी जंग नहीं लगता, लेकिन गोल्ड से भी ज्यादा वो नोबल मेटल होता है। गोल्ड से भी ज्यादा लेस रिएक्टिव मेटल होता है, उसमें से रिएक्शन कराना उसके साथ इतना मुश्किल होता है, इसलिए उसकी कीमत गोल्ड से भी ज्यादा है। हार्डनेस को भी हमने मोस स्केल पे लिया था, एंड डिफरेंट कंपाउंड्स की हार्डनेस, डिफरेंट मटेरियल्स की हार्डनेस हमने देखा था। कार्बन डायमंड की जो हार्डनेस है वो सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन डायमंड की जो हार्डनेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हार्डनेस जो डायमंड की है, हम जानते हैं डायमंड इतना हार्ड होता है कि उससे इवन पत्थर तक को काटा जाता है। तो Yes, sir. डायमंड जो है वो, उसकी हार्डनेस जो है मोस स्केल में अगर हम देखें तो 10 होता है, एंड कोरंडम की हम हार्डनेस देखें तो वो 9 होता है। और जो टोपास होता है, टोपास ब्लेड होते हैं ना, वो भी एल्यूमिनियम का ओर होता है टोपास। टोपास जो Yes, ब्लेड sir. होते हैं ना, तो वो ब्लेड का Yes, sir. नाम इसलिए है टोपास क्योंकि वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। तो एल्यूमिनियम के एक ओर का नाम होता है टोपास। ठीक है, तो वो जो एल्यूमिनियम का ओर है टोपास, उसकी हार्डनेस भी डायमंड के बराबर ही होती है, 10 होती है। एंड जो क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज की जो हार्डनेस होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था ना कि जो स्टोन का आपको बोला था ना कि जो प्रेशियस स्टोन है जो पहनना सुन्नत है, वो क्वार्ट्ज होता है। मुझे उसका अरेबिक नाम याद नहीं आ रहा है, उस दिन भी नहीं याद आ रहा था, आज भी याद नहीं आ रहा है। तो वो क्वार्ट्ज है, और उसका जो हार्डनेस है वो मोस स्केल पे 7 होती है, यानी कोरंडम, डायमंड एंड टोपास से कम होती है। देन जो टैल्क है, टैल्क का जो हार्डनेस होता है मोस स्केल पे वो 1 होता है, यानी इतना Yes. कम वो हार्ड होता है, सॉफ्ट में कंसिडर होता है। ठीक है, चलिए अब Yes, sir. यहाँ से आगे अपन को करना है कि मिक्सचर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होमोजेनस होता है, होमोजेनस होता है यानी सर वन। हाँ, हाँ बोले। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है सर, आपकी आ, स्क्रीन नहीं आ रही सर, फोटो इमेज। अच्छा, मेरे इसमें तो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन, नेट का इशू हो सकता है कुछ। नहीं हो रहा सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रहा है यहाँ तो, डिस्प्ले हो रहा है वैसे स्क्रीन, कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है आपके यहाँ। मैशा, आपके इसमें आ रहा है स्क्रीन? Yes, sir. अच्छा, चलिए देख लीजिए थोड़ी देर, शायद नेट हो सकता है इशू, इसलिए ना आ रहा हो स्क्रीन। तो
ये वीडियो भी जैसा मैं हर बार करता हूँ क्लास के बाद मैं आपको यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आई थिंक इफ यू विल बी मिसिंग ड्यू टू सम नेटवर्क रिलेटेड इशू देन आल्सो यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन गो थ्रू दिस ऑल एंड इफ स्टिल प्रॉब्लम परसिस्ट यू कैन आस्क मी। फाइन, चलिए Yes. तो आगे अपन चलते हैं। और कि होमोजेनस का मतलब क्या होता है कि जैसे ये एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में जितने भी सैंपल्स आप लेंगे उन सारे सैंपल्स का जो प्रॉपर्टीज होगा, जो कंपोजिशन होगा, वो सेम होगा थ्रू आउट द सिस्टम। व्हाट डज इट मीन्स? मीन्स दिस सिस्टम इज वन फेज सिस्टम। सो वन फेज सिस्टम इन विच constituents are only one and the same throughout the system, then such systems are called homogeneous systems, homogeneous mixtures. And if अगर हम डिफरेंट कॉर्नर से डिफरेंट सैंपल्स लें और उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आए, अगर उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आए, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो, इसकी अलग हो, इसकी अलग हो, इसकी अलग हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो वन फेज सिस्टम नहीं है, वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा फेसेस का बना हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो होमोजेनस के एग्जांपल्स हैं आपके सामने हजारों एग्जांपल्स हैं। 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड में क्या होता है? सिर्फ सोना होता है, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। Yes, sir. NaCl प्लस वाटर, उसमें भी कोई दूसरा फेज नहीं होता। आपको दो चीजें थोड़ी दिखाई देती हैं। अगर आप नमक को पानी में डालें तो नमक अलग दिखाई देता है क्या? पूरा सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है। इसी तरह से आयोडीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालें, या बेंजीन को टॉल्यूइन में डालें, या मिथाइल अल्कोहल को वाटर में डालें, या गैसोलीन, गैसोलीन जानते हैं क्या होता है आप? गैसोलीन कभी देखा है आप लोगों ने? No, sir. गैसोलीन मीन्स पेट्रोल। गैसोलीन मीन्स पेट्रोल। पेट्रोल को, जो कि मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है, गैसोलीन कहा जाता है। तो गैसोलीन दैट इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अब उसमें आपको ये थोड़ी दिखाई देता कहाँ मीथेन है, कहाँ इथेन है, कहाँ प्रोपेन है, कहाँ ब्यूटेन है, कुछ भी दिखाई नहीं Yes. देता। ऐसे ही एयर में आपको थोड़ी दिखाई देता कहाँ पर CO2 है, कहाँ पर H2 है, कहाँ पर O2 है, कहाँ पर N2 है, वो सब नहीं दिखाई देता। मतलब ये सारे होमोजेनस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? होमोजेनस मिक्सचर्स के Homogeneous. एग्जाम्पल्स हैं। देन हेट्रोजेनस के सैंड प्लस स्टोन ले लीजिए, सॉइल ले लीजिए, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड ले लीजिए, आयरन फ्लिंक्स एंड सैंड ले लीजिए, स्मोक ले लीजिए, ये सभी जो है हेट्रोजेनस सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी हेट्रोजेनस सिस्टम के एग्जाम्पल है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा फेसेस इन्वॉल्व होती हैं। अब ये जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको हमको सेपरेट करना है, तो मेथड ऑफ सेपरेशन जो है वो क्या होती हैं, किस तरह से इनको सेपरेट किया जा सकता है? डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई किया जाता है, बेस्ड ऑन द वेट, बेस्ड ऑन द डेंसिटी, बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे, इनके बिना पे हम इनको इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो मोर देन टू और मोर देन टू फेज वाले सिस्टम्स हैं, उनमें से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। उनमें से पहला है फिल्ट्रेशन। अगर एक कंपोनेंट वाटर में इनसॉल्युबल हो, जैसे सॉल्ट एंड सैंड है, तो सॉल्ट तो वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सैंड थोड़ी सॉल्युबल है वाटर में। तो हम क्या करेंगे? फिल्टर करके सैंड को अलग कर लेंगे, एंड देन फिर उसके बाद इवापोरेट करेंगे। तो इवापोरेशन से वाटर उड़ जाएगा और खाली क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। तो आपके जो बॉम्बे में आप या जो भी कोस्टल एरियाज हैं, तो उन कोस्टल एरियाज में ऐसा ही तो होता है कि जो वाटर है वो वाटर भर दिया जाता है। जो लगून्स हैं उनमें पानी भरा रहता है समंदर का। अब वो पानी भरा रहता है तो क्या होता है? गर्मी की वजह से वो पानी इवापोरेट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? खाली सॉल्ट बचेगा। तो इस तरह से सॉल्ट, सैंड एंड वाटर को सेपरेट किया जा सकता है फिल्ट्रेशन करके। फिल्ट्रेशन से सॉल्ट अलग हो जाता है, एंड देन इवापोरेशन से सैंड और वाटर में से सॉल्ट एंड वाटर में से सॉल्ट अलग हो जाता है और वाटर इवापोरेट हो जाता है। तो देन सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में जो सॉलिड है उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उन वेपर्स को अगर हम कूल करेंगे तो सॉलिड में। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एंड वाइस वर्सा, that is called sublimation. What it is sublimation. Then naphthalene जो है वो Can you please सब्लिमेशन। give an example for sublimation? हाँ, सब्लिमेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ये नैप्थलीन बॉल्स रखते हो ना कपड़ों में,
कपड़ों में जो Yes, आप sir. नेफ्थलीन बॉल्स रखते हो वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। आपने बॉल्स रख दी, आज आप 10 दिन 20 दिन के बाद 2 महीने के बाद देखो कि वो बॉल गायब हो जाती है, वो वहाँ पे पानी तो होता नहीं है ना। तो Yes. दैट इज एन एग्जाम्पल। नेफ्थलीन है। आयोडीन भी ऐसा ही होता है। आयोडीन भी जो है ना डायरेक्टली सब्लाइम हो जाता है हीट करने पे। देन NH4Cl प्लस KCl, NH4Cl प्लस KCl, क्या चीज़ एक और होता है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, सफ़ेद होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको भी अगर रखें अपन तो वो भी कुछ टाइम में, वो जो ये कोरोना है ना उसके लिए भी आपके ये सब बहुत अच्छा होता है। खुशबू जो होती है ना, उससे खुशबू से कोरोना के जर्म्स जो है मरते हैं, ऊद से या खुशबू से या क्या बोलते हैं उसे, एक तो फिटकरी है, दूसरा क्या है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो वो Yes. चीज़ भी एग्जाम्पल होता है सब्लिमेशन का, वो भी डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से। चलिए Okay, खैर, sir. हाँ चलिए खैर, याद आएगा तो बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ बोलें, क्या बोल। कपूर सर, कपूर। हाँ कपूर, कैम्फर, सॉरी याद नहीं आ रहा था, कैम्फर, कपूर, कैम्फर भी जो है ना वो भी आपके कोरोना में बहुत काम की चीज़ है, तो वो सारे जर्म्स को मारता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं। NH4Cl एंड KCl जो है ना, ये भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, और इसको भी इसी तरह से सेपरेट किया जाता है। KCl जो है वाटर में सॉल्युबल रहेगा, और NH4Cl जो है, तो NH4Cl, नैप्थलीन, कैम्फर, ये सभी जो है ना ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी सब्लाइम हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। जो घरों में भी अपन रखते हैं, और जब दफनाते हैं तब भी कैम्फर रखते हैं, मैयत के साथ भी कैम्फर रखते हैं, तो वो भी जर्म्स को मारने में काम आता है। चलिए, तो सेपरेशन की मेथड्स में फिल्ट्रेशन हुआ, सब्लिमेशन हुआ, एंड देन थर्ड जो है वो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इवापोरेशन देन कंडेंसेशन, पहले इवापोरेट करना एंड देन कंडेंस करना, इसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। तो पानी को इसी तरह से प्यूरिफाई किया जाता था, पानी को इसी तरह से प्यूरिफाई किया जाता था कि पहले इवापोरेट कराते थे तो धूल मिट्टी नीचे रह जाती थी, अब जब प्योर वाटर हुआ तो फिर उसको कंडेंस कर लिया। एक्चुअली में दुनिया में जितने भी पानी होते हैं उनमें सबसे अच्छा पानी जो है वो रेन वाटर होता है। जो रेन वाटर होता है ना वो मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, लेकिन होता क्या है कि वो बारिश का पानी जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आता है, तो फिर वो पॉल्यूट हो जाता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है, तो उसमें खराबी आ जाती है। तो जो रेन वाटर होता है अदरवाइज मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है। तो डिस्टिलेशन में यही तो होता है कि पानी भाई ज़मीन से पहले पानी इवापोरेट हो गया, बादलों में बदल गया, देन वहाँ से कंडेंस हो गया, वही बारिश के फॉर्म में आ गया, तो इस तरह से जो धूल मिट्टी थी वो उस पानी में से सेपरेट हो गई, तो ये डिस्टिलेशन कहलाता है। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स वाले जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, अलग अलग बॉइलिंग रेंज वाले जो लिक्विड्स हैं उनको अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर में बॉइल कराया जाता है, और उनको डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स में इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर वहाँ पर कंडेंस कर लिया जाता है। तो भाई जो सबसे ज़्यादा आसानी से एवापोरेट हो जाएगा, सबसे कम बॉइलिंग टेम्परेचर जिसका होगा उतना आप टेम्परेचर दोगे, तो जो सबसे कम बॉइलिंग टेम्परेचर पे वॉलेटाइल होने वाला है वो इवापोरेट हो जाएगा, देन उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, इस तरह से सारे फ्रैक्शंस को उस लिक्विड में से सेपरेट कर लेते हैं, उनको प्योर फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, इस तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाता है। देन जो आपका कॉपर सल्फेट प्लस वाटर है, इसका मिक्सचर जो है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड जो CH3OH है, CH3OH है, उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से अगर ब्लू विट्रियोल में मिथाइल अल्कोहल मिला दें तो इस तरह से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मिथेनॉल का, ये मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है ना, तो इसलिए इजीली इवोपरेट हो जाता है, वोलेटिलाइज हो जाता है,
और लो टेम्परेचर पे हो जाता है। तो इस तरह से उसको सेपरेट कॉलम में एंड वाटर को सेपरेट कॉलम में इकट्ठा कर लेते हैं, बचा रह जाता है आपका सॉलिड। तो वो सॉलिड हम इस तरह से वाटर से एंड मिथेनॉल से सेपरेट किया जा सकता है। देन जो नेक्स्ट मेथड है, ये आपने 6th-7th में भी पढ़ा है ये सारी मेथड्स। तो मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन में एक चीज जो है वो मैग्नेटिक होनी चाहिए और दूसरा कंपोनेंट है वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए। जैसे Fe जो है वो मैग्नेटिक है और जो उसमें धूल, मिट्टी या सल्फर होगा वो नॉन मैग्नेटिक होगा। तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उस मैग्नेटिक बेल्ट से अटैच हो जाएगा और जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो रिमूव होता जाएगा। इस तरह से जो डस्ट है, सल्फर है या मिट्टी है, वो सभी चीजें उस आयरन से सेपरेट हो जाती हैं। तो ये भी एक प्यूरिफिकेशन की मेथड है जिसे मैग्नेटिक सेपरेशन हम कहते हैं। देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो मेथड है उसमें क्या होता है, वो प्रेफरेंशियल सॉलिबिलिटी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट के एक कोई कंपोनेंट है उसकी किसी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट में प्रेफरेंशियल सॉलिबिलिटी होती है, यानी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स से कंपेयर में एक कंपोनेंट तेजी से सॉल्युबल हो जाता है। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल, कॉम्पीटिंग सॉलिबिलिटी, कंपैरेटिव सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो वो कॉम्पीटिंग या प्रेफरेंशियल या कंपैरेटिव सॉलिबिलिटी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से विच फॉर्म्स आर डिस्टिंक्टली सेपरेट लेयर विद द, तो जिसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है उसने ये लेयर बना ली और जिसकी सॉलिबिलिटी कम है वो ये, और जो कम सॉल्युबल है वो यहीं पर नीचे ही रह जाएगा। तो इस लेयर को आपने हटा लिया, इस लेयर को हटा लिया धीरे धीरे बिना हिलाए डुलाए। तो इस तरह से आप सारे कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से सेपरेट कर पाते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर कैन बी रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ ईथर और CS2। दो लेयर्स बनती हैं, अपर जो लेयर होती है वो डार्क ब्राउन होती है जो कि ईथर और आयोडीन की होती है, और जो दूसरी लेयर होती है वो सिर्फ वाटर होता है। तो आयोडीन और ईथर की जो लेयर होती है उससे अपन सेपरेट कर लेते हैं और उसको बाहर रख देंगे, तो वो जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और आयोडीन जो है वो सबलाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ईथर, वाटर और आयोडीन तीनों को सेपरेट कर लेते हैं। जो ऑयल एंड वाटर होता है, जो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको भी हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पर लिख दिया कि सेपरेटिंग फनल टेक्निक से ऑयल एंड वाटर जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल था इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये फर्स्ट मॉड्यूल था। देन सेकंड है, इस सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत आसान चैप्टर है लेकिन कुछ रूल्स आपको जो है वो पता होने चाहिए, तभी आप इसको हैंडल कर पाएंगे। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनको इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे टोटल करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, वो देखिए आप कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर जो है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जो एक्सट्रीम राइट डिजिट्स होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं और उसके अलावा बाकी जो डिजिट्स होती हैं वो सर्टेन होती हैं। जैसे देखिए 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। So your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओ सॉरी। Sir, module 1 ही खुला है। हाँ चलिए ठीक है।
एक मिनट कर रहा हूं मैं। हाँ, पॉज हो गया है ये। Yes. एक मिनट में रीस्टार्ट कर लेता हूँ। हाँ, फाइन, रीस्टार्टिंग जस्ट। Yes. Sir. चलिए, अभी विजिबल है स्क्रीन?